دوستوں السلام علیکم. میں مولانا ابرار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی نیوز. بی فور یو کی لیڈرشپ اور اس کے کچھ مارکیٹرز پچھلے کافی دنوں سے کمپین چلا رہے ہیں. وہ کمپین یہ ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بی فور یو کو کلیئر کر دیا. جو بات تواتر کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ دراصل پاکستان کے عوام اور بی فور یو کے ممبران کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے. ایس سی سی پی کی 16 مارچ 2021 کی ایک پریس ریلیز کو مس یوز کرتے ہوئے. دراصل ایس سی سی پی نے 16 مارچ 2021 کو یہ جو پریس ریلیز جاری کی یہ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی. یہ آل پروجیکٹس کمپنی کی بے قاعدگیوں اور مشکوک کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے ہے. میں آپ کو یہ پریس ریلیز پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات کرنا ضروری ہے. بلکہ آئیں یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر، یہ آپ کو واٹس ایپ کا ایک اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے جس میں یہ شخص، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، تو اس نے مجھے یہ میسج بھیجا، ساتھ میں یہ اٹیچمنٹ بھیجی ہے ایس سی سی پی کی 16 مارچ 2021 کی پریس ریلیز کی، اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں. اس کا دعویٰ ہے کہ اس پریس ریلیز میں ایس سی سی پی نے بی فور یو کو کلیئر کر دیا ہے. اور آپ یہ اسکرین شاٹ بھی دیکھیں. یہ یوٹیوب پر میری ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں کسی صاحب نے کہا ہے، آپ ان کا نام تو پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا یہ نام اصلی ہے یا جعلی ہے. آئیے پہلے اس پریس ریلیز کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں. اور میں یہ جو لوگ اچھل کود کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کو مس گائڈ کر رہے ہیں، ایس سی سی پی کی پریس ریلیز کو مس یوز کرتے ہوئے یہ اپنے بی فور یو کے 4.5 لاکھ ممبران کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایس سی سی پی نے بی فور یو کو کلیئر کر دیا ہے. چلو دیکھتے ہیں کہ ایس سی سی پی نے کلیئر کیا ہے یا نہیں کیا ہے. میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بھائی صاحب، جو آپ کے 15 دن سے لگے ہوئے ہو، 20 دن سے ایک بیکار کی کوشش میں فیوٹائل ایفرٹ کر رہے ہو، کوئی کام کرو، کوئی اچھا کام کرو، کوئی ایسا کام کرو جو باقی کام بھی ہو. تو آپ کہتے ہو کہ بی فور یو کلیئر کر دیا گیا. بی فور یو کا نام نہیں ہے اس پریس ریلیز میں. اس وجہ سے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس پریس ریلیز میں نام ہے. آپ میری ویڈیو آخر تک دیکھتے رہے، میں آپ کو نام دکھاؤں گا، آپ نہیں پڑھ سکتے، شاید آپ ان پڑھ ہو. حاضرین، اس میں پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اس پریس ریلیز میں سے بی فور یو کا نام پڑھنا. کوئی ڈگریوں کی بڑی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے، کوئی پی ایچ ڈی، ایم بی اے، ایم ایس سی اکنامکس ہونا ضروری نہیں ہے. یہ عام سادہ سا پڑھا لکھا شخص بھی اس میں بی فور یو کا نام پڑھ سکتا ہے. میں آپ کو آخر میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے اور کہاں پر بی فور یو کا نام لکھا ہوا ہے. آپ مطمئن ہوئے، خاطر جمع رکھیں. آئیے سب سے پہلے ہم یہ جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے ایس سی سی پی کی 16 مارچ 2021 کی پریس ریلیز، یہ پڑھتے ہیں. Beware of investing in fraudulent schemes, SCCP. Islamabad, March 16. The Securities and Exchange Commission, SCCP, to promote protection of investors and public interest, regularly issues warnings and alerts guiding the general public to refrain from investing in fraudulent investment schemes that promise hefty profits and unrealistic returns. As clearly covered in Section 84 of Companies Act 2017, inviting and accepting deposit from the public is prohibited activity and can only be offered by specialized companies duly authorized by the SCCP or SBP. In review of various complaints and queries received by the SCCP concerning an entity, All Pakistan Projects, it has emerged that the entity is offering lucrative investment packages through its website https://allpakistanprojects.com. The general public is being informed that All Projects is not registered with the SCCP. However, it has been noted that few individuals whose names are appearing on the website of the entity are director members in the following registered companies: APP Projects and Real Estate Private Limited, AITS Traders SMC Private Limited, APP Restaurants and Cafe Private Limited, APP Riders Private Limited, APP Shopping Mall Private Limited. As previously clarified, mere registration of company with the SCCP does not necessarily mean that these companies can invite or accept deposits from the public. In view of above, the general public is advised in their own interest to refrain from investing their hard-earned savings in unauthorized schemes and verify the legitimacy of any investment scheme before investing. ناظرین، پریس ریلیز تو ختم ہو گئی مگر بی فور یو کا نام ہی نہیں آیا.
आप भी सोच रहे होंगे यार कि इस बंदे ने झूठ बोला है कि प्रेस लिस्ट में बी फॉर यू का नाम है, मगर मैंने तो तकरीबन सारी की सारी प्रेस लिस्ट पढ़ दी है, मगर बी फॉर यू का नाम नहीं आया है। चलो नाज़रीन, मैं आपको अब बताता हूँ कि कहाँ पर नाम लिखा हुआ है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एससीसीपी की प्रेस रिलीज में आगे लिखा जाता है, लिस्ट ऑफ अदर एंटिटीज स्लैश कंपनीज इन्वॉल्व इन सिमिलर अनऑथोराइज्ड स्कीम्स इज अवेलेबल ऑन एससीसीपी's वेबसाइट एट द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक आपको नजर आ रहा है, https://www.scccp.gov.pk/document/list of companies indulged in unauthorized activities, सो एंड सो आ गया। आइए नाज़रीन, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो आपको बताएगी कि इस प्रेस रिलीज में बी फॉर यू का नाम कहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर गूगल खोलेंगे। ये देखें गूगल खुल रहा है। यहाँ सर्च में जाकर लिखेंगे SECP, ये क्लिक कर देंगे। SECP की वेबसाइट ये क्लिक करेंगे। फिर लिंक जो आया है पहला सबसे ऊपर, ये खुल रही है। ये खुल रही है। उसके बाद ये लिंक क्लिक करेंगे और मीडिया सेंटर पर क्लिक कर देंगे। मीडिया सेंटर ये दूसरा ही ऑप्शन है प्रेस रिलीजेस का, ये आप क्लिक करेंगे। ये आप प्रेस रिलीज है जितनी भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की हैं वो उसकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। ये खुल रही है प्रेस रिलीजें आहिस्ता आहिस्ता। ये प्रेस रिलीजें आ गई हैं। ये देखें, ये आ गई है 16 मार्च 2021 की प्रेस रिलीज, बिवेयर ऑफ इन्वेस्टिंग फ्रॉडलेंट स्कीम्स। इसको आप डाउनलोड कर करें। ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये डाउनलोड हो रही है। ये डाउनलोड होकर स्क्रीन पर ये सामने नजर आ गई है। ये प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज का उर्दू वर्जन भी है और अंग्रेजी वर्जन भी है, और इन दोनों वर्जन में ये एक लिंक दिया गया है। मैं उर्दू वर्जन पढ़ देता हूँ आपको। याद रहे कि किसी कंपनी की एससीसीपी से रजिस्ट्रेशन का कतई ये मतलब नहीं कि ये कंपनी अवाम से सरमायाकारी के नाम पर फंड इकट्ठा कर सकती है। अवाम नास को मुतलब्बे किया जाता है कि ऐसी स्कीमों से गुमराह न हूं जो उन कंपनियों के साथ किसी भी किस्म का लेन देन कर रहे हैं। गैर कानूनी और मशकूक कारोबारी सरगर्मियों मुलव्वस कुछ कंपनियों की फहरिस्त एससीसीपी की वेबसाइट पर मदंजा झेल लिंक पर मौजूद है। क्लिक करेंगे तो अब ये लिंक है जिसको आप क्लिक करेंगे तो मशकूक और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। अब हम इसको क्लिक यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर इस तरह वेबसाइट खुलती है, लेकिन ये लिस्ट नहीं आई है क्योंकि ये लिस्ट मोबाइल पर नहीं खुल सकती है, बल्कि आप ये अगर पीसी यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ये लिस्ट यहाँ लिंक से खुल जाती है। अब यही लिंक खोलने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप ये वापस चले जाएं एससीसीपी की वेबसाइट में, फिर यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये मीडिया सेंटर क्लिक किया। मीडिया सेंटर क्लिक करने के बाद आप ये पहला, दूसरा, तीसरा छोड़कर चौथा ऑप्शन ये गाइड बुक्स है, इसको आपने क्लिक किया। ये ऑप्शन खुल रहा है, ये लिंक खुल रहा है। ये देखिए लिंक खुल गया, और जैसे ही लिंक खुला है तो सबसे ऊपर वाला जो है ना, ये है लिस्ट ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व इन अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज। ये 23 फरवरी 2021 को अपडेटेड लिस्ट डाली गई है। आप ये डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। ये कंपनियों की लिस्ट आ गई है, और यहाँ आप सर्च में जाएंगे। सर्च में जाकर आप B4U लिखें, B4U। ये आपने जैसे ही B4U लिखा है तो ये देखें तीसरे नंबर पर B4U ग्रुप आ गया है। मशकूक और गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्वस कंपनियों की ये लिस्ट है। ये कोई 27 कंपनियां हैं जिनको मशकूक और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस करार दिया गया है। ये B4U ग्रुप लिखा हुआ है और ये इसके सामने लाहौर और कराची लिखा हुआ है। ठीक है नाज़रीन, अब तो आपको इत्मीनान हो गया होगा कि B4U को किसी किस्म का 16 मार्च 2021 को एससीसीपी की तरफ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, बल्कि B4U का वही स्टेटस है जो कि 23 फरवरी 2021 को था। इसमें अभी तक कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। तो नाज़रीन, आपने देख लिया, मैंने आपसे वादा किया था कि B4U का नाम आपको मैं बताऊंगा।
जनाब आला, ये जो लिंक है ये इसी प्रेस रिलीज का हिस्सा है और एससीसीपी की वेबसाइट इसी प्रेस रिलीज का हिस्सा है और ये प्रेस रिलीज एससीसीपी की वेबसाइट का हिस्सा है। आप चेक कर रहे होंगे, आप भी आप जाएं, अपना पीसी कंप्यूटर खोलें या लैपटॉप खोलें और ये प्रेस रिलीज डाउनलोड करें। उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करें। ये लिस्ट जब खुलेगी तो तीसरे नंबर पर आपको B4U का नाम नजर आएगा। मैंने आपको कहा था कि इसके लिए किसी पीएचडी की डिग्री की जरूरत नहीं है। ये एक आम सा काम है, बिल्कुल सादा पढ़ा लिखा शख्स मैट्रिक या मिडिल पास भी ये लिंक क्लिक करके इस लिस्ट को खोल सकता है और इसमें बताया गया है कि मशकूक और गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मी में ये फलां फलां कंपनियां मुलविस हैं और उसमें तीसरे नंबर पर B4U है। अब आप खुद सोचिए कि जो लोग इस तरह के सहारे ढूंढ रहे हों और किसी और के लिए प्रेस रिलीज जारी हो रही हो और उसमें कह रहे हो कि देखो B4U का नाम नहीं है लिहाजा B4U को क्लियर कर दिया। ये तो नाज़रीन ऐसे है कि जैसे एक महीना पहले किसी इलाके में कत्ल हुआ और थाने में FIR एक मुल्जिम के खिलाफ कटी हो, एक महीने के बाद एक और कत्ल हो गया हो तो दूसरी FIR जब कटती है किसी और मुल्जिम के खिलाफ तो पहले वाला जो कातिल है वो कहे देखो इस FIR में मेरा नाम नहीं है। अब ये तो नहीं होता है कि थाने वाले हर FIR में सबका जो कत्ल हुए हैं इससे पहले उन सब का हवाला दे दे कि ये कत्ल भी होते और ये कातिल थे। ऐसा तो नहीं होता है। कल को एससीसीपी एक और प्रेस रिलीज जारी करेगी, उसमें भी B4U का नाम नहीं होगा, फिर कहेंगे कि ये क्लियर हो गया। हाँ, एक और प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है आज से चंद दिन पहले गुज़श्ता जुमेरात को, उसके बारे में भी बड़ी कंपेन चलाई जा रही है। उसके बारे में कल वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसका कच्चा चिट्ठा क्या है और ये किस तरह एससीसीपी की प्रेस रिलीजों को मिस यूज करके अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और खासतौर पर B4U के 4.5 लाख मेंबरान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ताकि वो अपने पैसे इनसे ना मांग सके। क्योंकि सैफुर रहमान नियाज़ी के खिलाफ तो नैब और FIA में संगीन नौयत के इल्जाम के तहकीकात चल रही है और सैफुर रहमान नियाज़ी की तो ये सूरत हाल है कि वो कहीं पर सेफली ट्रेवलिंग भी नहीं कर सकता। कराची से इस्लामाबाद आना था तो उसने 4 रोज की कराची हाई कोर्ट से एक बेल कराई है जिसको सेफ्टी बेल कहते हैं और उसके बाद इस्लामाबाद में आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट करवाई हुई है जो कि 15 अप्रैल तक है। 15 अप्रैल को सैफुर रहमान नियाज़ी साहब पेश होंगे और नए वाले भी पेश होंगे, फिर देखेंगे कि होता है क्या।